Bismillahirrahmanirrahim. Objective type. Multiple choice question. 4 possible answers to each questions are given below. Circle the correct answer. Number 1. The actual amount borrowed is called जी याद रखिएगा the actual amount. पहला क्वेश्चन the actual amount borrowed by याद रखिएगा the actual amount borrowed by amount borrowed is called, उसको आपने प्रिंसिपल बोलना है भाईजान की डेफिनेशन आपने याद रखनी है. the actual amount borrowed is called principal. the principal amount is also called capital. भाई प्रिंसिपल अमाउंट को नंबर 2 को आपने क्या बोलना है? कैपिटल. the principal amount is also called capital. भाईजान याद रखना प्रिंसिपल अमाउंट is also called capital. interest is basically a fee for use of money. Interest is basically a fee for use of money. जी नहीं इसका ए पार्ट जो है ना करेक्ट है. बाई इंटरेस्ट इज बेसिकली ए फी फॉर यूज ऑफ मनी. अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड इज फिक्स्ड थ्रू आउट इन सिंपल इंटरेस्ट. बाई अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड. By amount of interest is fixed throughout is called simple interest. By amount of interest is fixed. Amount of interest is fixed. By amount of interest is fixed throughout in simple interest. By amount is equal to principal plus interest. भाई याद रखिएगा पांचवा है amount is equal to principal plus interest. भाई याद रखिएगा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट कैन बी कैलकुलेटेड एज भाई सिंपल इंटरेस्ट कैन बी पी इंटू आर इंटू एन. भाई ए पार्ट इज करेक्ट. सिंपल इंटरेस्ट कैन बी कैलकुलेटेड एज पी इंटू आर इंटू एन. अमाउंट यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट कैन बी ऑब्टेन एज भाई अमाउंट यूजिंग simple interest can be obtained as P plus PRN. By A part correct, P plus PRN. By amount using simple interest can be obtained as by P plus PRN. आठवां है compound amount formula is ये P into 1 plus R की power n. जी by compound amount formula is ये P into 1 plus I कर लो, इंटरेस्ट कर लो या आर की पावर एन कर लो जी. भाई पी इंटू 1 प्लस आर की पावर एन या आई की पावर एन. कंपाउंड अमाउंट फार्मूला इज पी इंटू 1 प्लस आई की पावर एन. कंपाउंड अमाउंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिंपल अमाउंट. भाई याद रखिए कंपाउंड अमाउंट जो होगी ना इज ऑलवेज ग्रेटर. भाई कंपाउंड अमाउंट क्या होगा? इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिंपल अमाउंट. By compound amount is always greater than simple amount. जी याद रखिएगा नवा क्वेश्चन है compound amount is always greater than simple amount. Principal amount is always varies in compound interest. By principal amount always varies. By principal amount always varies in compound interest. By simple principal amount is always varies in compound interest. जी आगे तो देखिएगा compound amount is always greater than simple amount. By compound amount नामक क्वेश्चन है compound amount is always greater than simple amount. Principal amount always varies in compound interest. याद रखिएगा principal amount always varies in compound interest. By principal amount always varies in compound interest. By question number 11, if R बराबर है 15%, then amount will be double in. If R बराबर है 15%, then amount will be double in 5 years. If the total ये कैलकुलेट करके निकाला है जी. If total amount paid is rupees 1344 and simple interest is 344, then principal is
भाई ये याद रखेगा वो क्या कितना होगा जी, 1000 रुपया होगा जी। भाई इफ टोटल अमाउंट पेड is rupees 1344 and principal interest and simple interest is 344, then principal is, ये याद रखिएगा 1000 होगा जी। भाई याद रखिएगा if total amount paid is rupees 1344 and simple interest is 344, then principal is 1000 जी। क्वेश्चन नंबर 13 है, if P बराबर है 500, R बराबर 8%, N बराबर 6 months, then amount will be जी, then amount of simple interest is 20 rupees जी। if P बराबर है 1000, R बराबर 10%, N बराबर 5, then compound interest is वो होगा 6105। ये कैलकुलेट करना पड़ेगा जी by using फार्मूला। कंपाउंड अमाउंट इज if P बराबर 4000, R बराबर 8%, N बराबर 2, वो कितना होगा 4665 जी। आयत नंबर 254 सूरह बकरा पारा नंबर 2। इस पहले खुलासा हम पढ़ते हैं जी। इस आयत मुबारक के जरिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों को तरगीब दी है कि उसने जो रिज़्क लोगों को दिया है वो उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करें, इससे पहले कि क़यामत का दिन आ पहुंचे। उस दिन अल्लाह के सामने ना होगी सौदेबाजी और ना काम आएगी किसी की दोस्ती और ना ही सिफारिश। फिर फरमाया जो इस अमल से मुनकर हैं वही जालिम हैं जी। पहले हम खुलासा पढ़ेंगे जी। इस आयत मुबारक के जरिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों को तरगीब दी है और उसने जो रिज़्क लोगों को दिया है और वो उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करें, इससे पहले कि क़यामत का दिन आ पहुंचे थे। उस दिन अल्लाह के सामने ना होगी सौदेबाजी और ना काम आएगी किसी की दोस्ती और ना ही सिफारिश। फिर फरमाया जो इस अमल से मुनकिर हैं वही जालिम हैं। अब इसका हम तर्जमा करते हैं जी। ये तर्जमा है जी सूरह बकरा आयत नंबर 254। ए ईमान वालो खर्च करो उसमें से जो माल दिया है हमने तुमको, इससे पहले कि आए वो दिन कि ना होगी जिसमें सौदेबाजी, ना काम आएगी दोस्ती और ना ही सिफारिश, और जो इससे मुनकिर हैं वही जालिम जी। वंस अगेन आई रिपीट इसकी ट्रांसलेशन, इसका तर्जमा, ए ईमान वालो खर्च करो उसमें से जो माल दिया है हमने तुमको, इससे पहले कि आए वो दिन कि ना होगी जिसमें सौदेबाजी, ना काम आएगी दोस्ती और ना ही सिफारिश, और जो इससे मुनकिर हैं वही जालिम हैं। अल्लाह ताला हम सबको हदायत वाली और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए और हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए।